Good morning, students. Today we are going to discuss the essentials of education. Education, as we know, it is very important to elevate of our life. So, in this chapter, in this essay written by Richard Livingstone, we will discuss what are the things which are very essential in education. This one small essay is extracted of short stories and one act play. So now we are going to start this essay, The Essentials of Education by Sir Richard Livingstone. As you are seeing here, before starting, we are going to discuss the central idea of the test. This essay, The Essentials of Education, presents the clear idea about the aim of education. What is the aim of education? You will see in this chapter. For example, to know the first rate in any subject or field of study and the essential of education. So, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, किसी भी फील्ड को आप स्टडी करते हैं, so it is very essential to know the first rate, means the quality, the ability, the excellence of that subject and field. So, first we will see introduction. Richard Livingstone was a famous British educationist and administrator. This essay is taken from lecture on the essentials and utility of modern education delivered by him at American International College. As you know, this lecture was given by Livingstone in American International College during his one of the visits of United States. वो यूनाइटेड स्टेट्स के विजिट में गए थे, वहाँ अमेरिकन इंटरनेशनल कॉलेज में उन्होंने लेक्चर दिया था ऑन एजुकेशन. सो उस लेक्चर में जो एजुकेशन के लिए क्या एसेंशियल्स हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, किस फील्ड की स्टडी करनी चाहिए, उसकी जानकारी दी गई है. तो उसी से ये इस एसे को एक्सट्रैक्ट किया गया है. सो हियर दिस इज़ द मेन वी कैन से द मेन टेक्स्ट ऑफ दैट एसे. इसमें टेक्स्ट के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है. पूरा ही टेक्स्ट है, ये कुछ भी छूटा नहीं है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एज वेल. Difficult to make decision in education because of unclear purposes. Right now, it is very problem occur in front of the student. जब student 10th के बाद study करता है तो उसके सामने बहुत सारी problems आती हैं. उसका main कारण यही है कि वो decide नहीं कर पाता है कि उसे क्या पढ़ना चाहिए, because उसका जो life का purpose है वो unclear होता है. That's why he is not able to select the subject and field of study. Now, going to school based on parents' wish. As we know, आज जो मेन है, बच्चा DPS में जाएगा, प्राइवेट स्कूल में जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, इट बेस्ड ऑन पेरेंट्स विश या सोशल हैबिट्स. हम देखते हैं हमारा बच्चा पड़ोस का कहाँ जा रहा है, हमारे रिलेशंस में कहाँ जा रहे हैं. अदर compulsion rather than knowing purpose. We don't know what is the purpose of education for my child, but हम सोसाइटी को देखते हुए अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे को स्कूल भेजने पर बाध्य करते हैं. Incomplete and irrelevant education without any definite reasons. कोई definite reason नहीं है. Without any definite reasons जो हम एजुकेशन बच्चे को देते हैं वो शायद हम ये नहीं जानते कि वो एडुकेशन बच्चे के लिए इनकम्प्लीट है या बच्चे के लिए रेलिवेंट नहीं है.
द ह्यूमैनिटीज़, जितने हमारे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट हैं उसमें से थियोलॉजी, फिलॉसफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मानव विज्ञान, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स and social studies. These humanities subjects enable students to know what is truly first rate. So in the sense we can say that these subjects are very essential to study. For example, अगर हम देखें तो जो बच्चा 11th के बाद दूसरे ह्यूमैनिटीज़ नहीं लेता, साइंस लेता है, पीसीएम या सीपीजेड लेता है, तो उसको अप टू 10th ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेने चाहिए. अब इसमें से हम देख रहे हैं मोस्टली जो सब्जेक्ट हैं फ़िलासफ़ी, लिटरेचर. फ़िलासफ़ी बच्चे को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, वैल्यू एजुकेशन पढ़ाई जाती है, और हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट्स हम सोशल स्टडी में बच्चे को 10th तक पढ़ाते हैं. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स अप टू 10th सोशल स्टडी या वैल्यू एजुकेशन ओनली पास होने के लिए पढ़ता है, नॉट एलिवेशन ऑफ हिज कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी. वो अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाने के लिए नहीं पढ़ता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ लेता है, पूरा थारोली सारे सब्जेक्ट्स सोशल स्टडी को अच्छे से सारे पॉइंट्स को नहीं पढ़ता है. सो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू रीड ऑल दीज सब्जेक्ट्स अप टू विच क्लास ही कैन स्टडी. मेन पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे. द पर्पज ऑफ एवरी कोर्स इज़ टू हेल्प द स्टूडेंट to learn what is first rate in the particular subject, whatever the subject he is going to study. जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ने जा रहा है उस सब्जेक्ट का मेन पर्पज़ है फर्स्ट रेट लर्न करना, एक्सीलेंट उसको हासिल करना, अपने उस क्षेत्र में बहुत अच्छा नॉलेज ज्ञान प्राप्त करना. द एम ऑफ एजुकेशन इज़ to know the first rate any subject that we study. जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी का मेन एम ही है कि हम उस स्टडी को किसी भी सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं उसे फर्स्ट रेट की जानकारी प्राप्त करें, एक्सीलेंट नॉलेज हमको हो, विद अ व्यू ऑफ अचीविंग इट एज नियरली एज आवर पावर्स अलाउ. जितनी हमारे में एबिलिटी है, जितनी हमारे में कैलिबर है, जितनी हमारे में कैपेसिटी है, उन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें उस सब्जेक्ट को एक्सीलेंट रूप में जानकारी प्राप्त करना. द वर्दी पर्पस इन लाइफ इज़ द डिजायर फॉर एक्सीलेंस. क्योंकि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है? डिजायर फॉर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस को प्राप्त करना, एक्सीलेंस की इच्छा रखना, एंड द परस्यूट ऑफ फर्स्ट रेट. अगर हम एक्सीलेंस को नहीं प्राप्त कर पाते, उस सब्जेक्ट में हम मास्टरी नहीं हासिल कर पाते हैं, तो हमारी एजुकेशन वर्थलेस रहती है. सो द ओनली ब्रांच ऑफ एजुकेशन इन विच वी आर इंटायरली सक्सेसफुल इज़ वोकेशनल एजुकेशन. आज एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि एजुकेशन की ब्रांच जो पढ़ाई जानी चाहिए उसमें जिसमें हम इंटायरली सक्सेसफुल होते हैं वो है वोकेशनल एजुकेशन. जैसे आज NEP 2021 में वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. इट इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज वोकेशनल एजुकेशन मेक्स अप मटीरियल सिविलाइजेशन सच एज उसमें इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, होटल कीपिंग. All these vocational education are very essential because we make ourselves entirely successful through all these studies. An educated man should know what is first rate in those activities which spring from the creative and intellectual faculties of human nature. As we know, हमारा नेचर है, उस ह्यूमन नेचर की जितनी भी फैकल्टीज़ हैं उन फैकल्टीज़ में क्या क्रिएटिव है और क्या इंटेलेक्चुअल है.
तो क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल से हम एक एजुकेटेड मैन ही जान पाता है। एंड सच एज उसके लिए ज़रूरी है कि वो लिटरेचर पढ़े, आर्ट पढ़े, आर्किटेक्चर पढ़े एंड म्यूजिक, बिकॉज लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक आर वेरी क्लोज टू आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में हम इनसे बहुत कुछ अपने यूटिलाइज करते हैं। दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। दीज सब्जेक्ट्स आर literature, art, architecture, music are the essential of education. The architecture may often be bad, हो सकता है architecture bad भी हो. The literature and music often puerile, means silly भी हो सकता है. कई बार हम मना करते हैं बच्चों के कि क्या है, हर समय म्यूजिक में बैठा रहता है, हर समय लिटरेचर ही पढ़ता रहता है. The art often under deserving of the name, but that is all the more reason why we should be able in all of them. हमें उनमें एबिलिटी लाना क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन भी आता है. टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड, बिकॉज विद द स्टडी ऑफ म्यूजिक, विद द हमारी जो इनर सेंसेस ओपन होती हैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से, और हम गुड एंड बैड में डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंट करना सीख जाते हैं. एक एजुकेटेड मैन में वो ये एबिलिटी होती है. एजुकेशन बिकम्स वेरी इनकम्प्लीट इफ़ वी डोंट नो व्हाट इज़ एक्सीलेंट इन ह्यूमन नेचर. हम एज ए ह्यूमन हैं, तो एज ए ह्यूमन हमारे नेचर का एक्सीलेंट पार्ट क्या है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो. इफ़ वी डोंट नो इन लाइफ द एक्सीलेंट, देन education is incomplete. We need clear standard about the distinction between first rate and second rate, between good and bad, in conduct and in life. It is very essential to know हमें क्या गुड है, क्या बैड है, क्या फर्स्ट एक्सीलेंट है और क्या बेटर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली फिल्म्स, रेडियो, प्रेस एट्सेट्रा ये मिक्स गुड एंड बैड टुगेदर, विच इन्फ्लुएंसेस द पब्लिक व्यू इन मॉडर्न सिविलाइजेशन. आज की सिविलाइजेशन में हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? फिल्म से, रेडियो से, प्रेस से. जो लोग सब्जेक्ट में हायर एक्सीलेंट नॉलेज नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उनको किसी फील्ड में स्टडी, हाई स्टडी नहीं कर पाए हैं, वो लोग अपना नॉलेज जो है ना फिल्म, रेडियो, प्रेस से प्राप्त करते हैं, और वो नॉलेज मिक्स होता है, गुड एंड बैड दोनों ही होता है. इन एनी फील्ड द ओनली वे टू लर्न व्हाट इज फर्स्ट रेट इज़ टू सी और मीट इट. आज हम किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम ये जानें कि उस फील्ड या उस सब्जेक्ट में एक्सीलेंट चीज़ क्या है. मीन्स हमें फर्स्ट रेट एडुकेशन प्राप्त करनी है, हायर अचीवमेंट उस सब्जेक्ट में करना है. इफ़ वी विश टू सी मैन फुल फेस, इट इज़ रिलीजन. अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं, बल्कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ फुल फेस मीन्स फुल पर्सनालिटी एक व्यक्ति की डेवलप हो, तो उसमें साथ में रिलीजन है, लिटरेचर है, हिस्ट्री है, वो भी हमें जानकारी उसकी होनी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि रिलीजन कंटेन्स द प्योरेस्ट एंड फाइनेस्ट आर्चिटाइप्स. एज वी नो, रिलीजन में हम अंदर से प्योर होते हैं, अंदर से सेंसिटिव होते हैं. हमारे वो सारी क्वालिटीज़ जो एक अलमाइटी गॉड में होती है, वो सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाती है. तो उससे वो व्यक्ति और भी एक्सीलेंट हो जाता है, एक्सीलेंसी को प्राप्त करता है, और वही लिविंग एग्जाम्पल नोबलेस्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें विवेकानंद, मौलाना, ये अपने अब्दुल कलाम आज़ाद. देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स इन आवर कंट्री. हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ मैन
एज वी नो, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम मैन के रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं एज ए सोशल बीइंग्स, उसने क्या किया, मेकिंग सोसाइटीज़ एंड विच ग्रो मोर कॉम्प्लिकेटेड. हिस्ट्री इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड. इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्चून्स ऑफ दी सोसाइटीज़ की फॉर्चून्स के बारे में बताता है हिस्ट्री. देयर सक्सेस एंड फेल्योर्स, कितने लोग सफल हुए, असफल हुए. द स्टॉर्म्स विच सैटर्ड देम, ऐसे तूफान आए जिससे कि हमारे बहुत सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई. विच दे रोड आउट. द विजडम एंड फोली, द वर्चूज एंड वाइसेस, ये सारे इसमें वाइस वर्सा हिस्ट्री में कंटेंस होता है. सिर्फ अच्छाई ही नहीं होती. अब द ऑफिसर्स एंड द क्रूज ऑफ मैनी शिप्स ऑफ स्टेट. लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर इज परहैप्स मोर इल्यूमिनेटिंग देन हिस्ट्री. व्यक्ति को अगर लिटरेचर पढ़ता है जो व्यक्ति, वो हिस्ट्री की अपेक्षाकृत ज़्यादा इल्यूमिनेट होता है. इल्यूमिनेट मीन्स ज्ञानवान, अंदर से ज्ञानी, प्रकाशित. बिकॉज इट इज सो पर्सनल इन इट्स बायोग्राफिकल एस्पेक्ट्स. जो लिटरेचर है उसमें हम बहुत सारी बायोग्राफिकल एस्पेक्ट्स पर्सनली स्टडी करते हैं. एंड देयर वी मे फाइंड लाइट ऑन ह्यूमन नेचर. लिटरेचर में ह्यूमन नेचर के बारे में भी प्रकाश डाला जाता है. एंड इट्स एक्सीलेंस बाय एक्टिव एंड डीप लर्निंग. लिटरेचर में एक्टिव और डीप लर्निंग से हम एक्सीलेंस को भी प्राप्त करते हैं. आप देखेंगे एक साहित्यकार का जो सोचने का दायरा है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. लिटरेचर, बिकॉज लिटरेचर रिकॉर्ड्स एवरी थॉट्स, एवरी विजन, एवरी फैंसी, एवरी इमोशंस एंड दैट हैज़ एवर पास थ्रू द ह्यूमन माइंड. हमारे मस्तिष्क में क्या चलता है वो सारा लिटरेचर में होता है. द ग्रेटेस्ट राइटर्स हैव आल्सो द नोबलेस्ट विजन. जितने भी ग्रेटेस्ट राइटर्स हैं, प्लेइस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, उनमें वो बहुत ही उनका नोबलेस्ट विजन होता है. आप देखेंगे उनका जो एटीट्यूड है, जो जीने का तरीका है, वो सबसे नोबलेस्ट होता है. इविल कम्युनिकेशंस करप्ट गुड मोर्स बट गुड कम्युनिकेशंस इम्प्रूव देम. एज वी नो कि अगर हम इविल कम्युनिकेशंस करते हैं तो हम करप्ट हो जाते हैं. मीन्स हमारे थॉट अच्छे नहीं होते हैं. लेकिन अगर हम गुड कम्युनिकेशन करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं. तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी एसेंशियल और उसमें भी गुड कम्युनिकेशन. नर्चर योर माइंड विथ ग्रेट थॉट्स. इट इज़ वेरी एसेंशियल माई स्टूडेंट्स. अपने आप को अच्छे विचारों से ही नर्चर करें, नरिश करें, पनपाएं, अपने आप को भरें. टू बिलीव इन द हीरोइक मेक्स हीरोज. हमें ये विश्वास करना होगा कि हीरोइक एक्शंस, हीरोइक थॉट्स, हीरोइक विजन्स हमको हीरो बनाती है. विदाउट दीज स्टडीज़ आवर एडुकेशन बिकम्स सुपरफिशियल. अगर हम इनका स्टडी नहीं करते हैं तो हमारी एडुकेशन सुपरफिशियल है. सुपरफिशियल मीन्स लिटिल नॉलेज वाली एजुकेशन है. सरफेस एंड डीप नॉलेज मेक्स एडुकेशन कंप्लीट. क्योंकि हमें सरफेस के साथ साथ डीप नॉलेज की बहुत ज़रूरत है. एसेंशियल्स ऑफ एडुकेशन में डीप नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी फील्ड का आता है, वही एडुकेशन व्यक्ति को कंप्लीट बनाती है. मैन नीड्स टू लॉन्ग विजन इन लाइफ एंड शुड व्यू इट थ्रू बायोफोकल स्पेक्टेकल्स. इट इज़ वेरी इसेंशियल कि हम बायोफोकल स्पेक्टेकल से अपने लाइफ के विजन को लॉन्ग बनाने की ज़रूरत है. वी कैन रेज अवर सेल्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ दोज हु हैव वॉक्ड ऑन हायर लेवल्स. कहते नहीं है कि जो लोग हायर लेवल्स चल चुके हैं, मीन्स पहुंच चुके हैं, जिन्होंने हायर लेवल्स प्राप्त कर लिया है, उनकी गाइडेंस में, उनके कंधों में, हम कंधों के सहारे अपने आप को
ऊंचा उठा सकते हैं। सो हायर लेवल्स में पहुँचे हुए लोगों की शरण में आकर के उनकी गाइडेंस में अपने लाइफ को और ज़्यादा नर्चर या फ्लरिश करने की हमको ज़रूरत होती है। सो रिलीजन इज़ द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर सो रेजिंग अस। हमने देखा कि रिलीजन, यहाँ रिलीजन का मतलब है आंतरिक ज्ञान, अपनी आत्मा से जुड़ना, मन और आत्मा का एक होना। रिलीजन ही एक ऐसा है जो हमको रेज करता है। इसी तरह से द पावर ग्रेट लिटरेचर एंड ग्रेट पर्सनालिटीज़ whom we meet in it and in history have to open and enable our minds. History is also very essential क्योंकि हिस्ट्री हमको हमारे माइंड को इनलार्ज करती है एंड शो अस व्हाट इज़ फर्स्ट रेट इन ह्यूमन पर्सनालिटी, और हमको बताती है कि फर्स्ट रेट मीन्स क्या, कैसे हम अपने आप को एक्सीलेंट, एक नोबलेस्ट पर्सनालिटी के रूप में डेवलप कर सकते हैं। ह्यूमन कैरेक्टर बाय शोइंग अस गुडनेस एंड ग्रेटनेस, और हम अपने आप को गुडनेस और ग्रेटनेस कैरेक्टर वाला व्यक्ति बना सकते हैं। एनी एडुकेशन विच निग्लेक्ट्स दैट इज़ इनकम्प्लीट, कोई भी एडुकेशन जो इनकम्प्लीट होती है, वही एजुकेशन इनकम्प्लीट होती है जो गुडनेस या ग्रेटनेस को निगलेक्ट करती है। एंड वेरी इनएडिक्वेट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, और ऐसी एडुकेशन जो गुडनेस और ग्रेटनेस को निगलेक्ट करती है वो हमारे जीवन के प्रिपरेशन के लिए एडिक्वेट नहीं है। सो माय गाइज, एज यू हैव सीन कि अपनी पर्सनालिटी को, अपने कैरेक्टर को, अपनी लाइफ को हम कैसे, किस सब्जेक्ट को, किस फील्ड की स्टडी को पढ़ करके हायर अचीव लाइफ में करें। हायर अचीव मतलब यहाँ पर पैसे से नहीं है, बल्कि हायर अचीव अपनी पर्सनालिटी बनाने से है। अगर आपकी पर्सनालिटी, आपके विचार, आपके एक्शंस सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में हेल्पफुल हैं तो आप ऑटोमेटिक अच्छे बनेंगे और आपका भी अच्छा होगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शायद आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे आप अपना एलिवेशन, इल्यूमिनेशन करने में हेल्पफुल होगा। थैंक यू, थैंक्स।